Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. If you remember, in last lecture we studied about the public finance. That is, we studied about money market and capital market. Money market is nothing but it's all about RBI and commercial banks. That is short-term funds and all. And what is capital market? Capital market is a long-term money, long-term funds. It consists of debenture, shares and etc. Now we have come to the last chapter of our topic. So let's look at it. Let's look at the index last chapter, that is 10th chapter, foreign trade in India. Let's look at our index. First we are going to study the introduction, meaning of foreign trade, types of foreign trade, role of foreign trade, composition and direction of foreign trade, recent trend in export, trend in import, concept of balance of payment. So let's have a look towards the chapter. Now, introduction. India started foreign trade only after independence. Before independence, what scenario did we have? As we all know, we were ruled by the Britishers. Britishers ruled on us. What Britishers did? They forced our farmers to cultivate only those crops which they were needed in their country, that is England. इंग्लैंड में क्या करते थे? यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल लेके जाते थे इंडिया से और इंग्लैंड भेजते थे. दे हैड देयर इंडस्ट्री ओवर देयर एंड विच वॉज क्वाइट मॉडर्नाइज्ड इंडस्ट्री ओवर देयर विद द मशीनरी. दे यूज टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स और मैन्युफैक्चर गुड्स एंड दे यूज टू कम बैक टू द इंडिया अगेन. इससे क्या हो गया? इंडिया मार्केट पूरा खराब हो गया. जो कपड़ा बनाने के लिए इंडियन यूज टू टेक ऑलमोस्ट 30 days, वही दिस ब्रिटिशर्स यूज टू टेक 15 to 20 days. एंड व्हाट अबाउट द प्राइस? प्राइस ऑल्सो सेम थिंग. इंडिया में उसी कपड़े का दाम 100 रुपया था, तो जब वो इंग्लैंड से आता था इट यूज टू बी ऑलमोस्ट 60 to 70 रुपीज. राइट? इससे क्या हो गया? पीपल गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फॉरेन गुड्स, राइट, टूवर्ड्स दोज इंग्लैंड गुड्स. क्यों? एक तो टाइम कंज्यूम कम हो रहा है और सस्ते में मिल रहा है, तो इंडियन स्टार्टेड बाइंग दोज प्रोडक्ट्स. बट इससे क्या हो गया? इससे इंग्लैंड को फायदा हुआ. बट व्हाट अबाउट इंडियंस? इंडियंस गॉट कंप्लीटली रूइंड, कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड. अब फार्मर्स को जबरदस्ती वो लोग, farmers were literally forced to produce only those goods. Like you might have heard about that indigo crops, Champadhar movement and all. इंडिगो क्रॉप्स यानी वो नील यानी जो ब्लू कलर का आता है ना, लाइक ब्लू कलर बनाने को बोलते थे नील. दैट इज नोन एज द इंडिगो क्रॉप. वो क्यों चाहिए रहता था उनको? फॉर दोस प्रोड्यूसिंग दोस क्लॉथ्स. उनको वो ब्लू कलर लगने का. सो दे यूज टू फोर्स द फार्मर. बट डू यू थिंक दे यूज टू पे द फार्मर्स प्रॉपरली फॉर दैट? नो. वो फार्मर्स को इसके लिए अच्छा दाम देते भी नहीं थे. They were just used to force and they used to exploit the farmer. Since this was the first thing, exploiting farmer was the first thing. जब वो इंग्लैंड से फिनिश गुड्स आता था तो इससे क्या हुआ? इंडिया मार्केट पूरा ruined हो गया. It got completely slashed off. Small scale industry, medium scale industries, what they had no any other option but to shut down their industries, right? So this was the effect. When India got independence, it was after the Second World War. India got independence. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, that time it started looking towards the foreign trade as an investment. Now, what is a trade? Buying and selling of goods within the boundary is called a trade, or it can be called as an internal trade, domestic trade, or internal trade, or home trade. For example, we say like Kashmir ke apple. When we go to market to buy fruits, the fruit seller say na, अरे कश्मीर से एप्पल आए हुए, it's very nice. So we get attracted towards the Kashmir apple, right? Or sometimes the fruit seller says, अरे this is New Zealand's apple, green color. This is green color's New Zealand apple. It's very nice. New Zealand से कीवी आई है मैडम. They say ना, that is nothing but a international trade. So trade within the country is called internal trade, and when the trade is outside the country, it is called as international trade. So meaning of foreign trade,
फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्या है ये फॉरेन ट्रेड? अपन क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के साथ अपन ट्रेड करते हैं. इट कैन बी ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड से कोई भी कंट्री के साथ कर सकते हो आप फॉरेन ट्रेड. नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट यू कि आप इस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करोगे, आप उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करोगे. इफ यू आर डूइंग ट्रेड विद दिस कंट्री, यू वोंट डू ट्रेड विद माई कंट्री. नो वन कैन डू दैट. फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन द different countries of the world. Now, definition of foreign trade. International trade consists of transaction between residents of different countries. International trade क्या है? It consists of transaction between residents of different countries. Like different countries के साथ अपन trade करना, that is known as international trade or foreign trade. Now let's move forward. Now, types of foreign trade: import trade, export trade, interport trade. Import यानी लेना, buying goods from foreign countries called as import trade. For example, India imports petroleum from Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, etc. We get dates, खजूर जो बोलते हैं ना, it is very good from the Saudi Arabian, from the Arab countries. ये सारे क्या होते हैं, अपन इंपोर्ट करते हैं. वी गेट चाइना प्रोडक्ट्स. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बहुत सी चीज़ें अपन चाइना से ही लेते हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट अ इम्पोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज इज नोन एज इम्पोर्ट ट्रेड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट ट्रेड? एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स अपन गुड्स दूसरे कंट्री को देना. रेफर टू सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू द अनदर कंट्री or flow of goods from one country to another country, that is known as export trade. Now India exports tea, then masales, spices, rice, jute, sugar. ये सारी चीज़ें क्या होती है, we export to other countries, that is known as the export trade. Next is the interport trade. What is meant by interport trade? इंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स एक कंट्री में प्रोड्यूस होने का और दूसरे कंट्री में बेचने का. लाइक सी, रेफर टू परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग इट टू द अनदर कंट्री आफ्टर प्रोसेसिंग. प्रोसेस करने के बाद मैं किसी और कंट्री को बेचूंगी. लाइक सी दिस कार्स एंड ऑल, हुंडई कार्स एंड ऑल. अभी क्या हो रहा है, हुंडई ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में ही चालू किया है, राइट. अभी वो हुंडई कंपनी इज अ MNC कंपनी. पहले वो सिर्फ कार अपने इंडिया में लाके बेचते थे. अब उन्होंने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में शुरू किया है. तो मैन्युफैक्चर इंडिया में करके दे आर सेलिंग इट टू द अदर कंट्रीज. दैट इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज लाइक जापान imports raw material required to make electronic goods like radio, washing machine, television from England, German, France, etc. and sell to the various part of the country. So this is known as the simple example of interport trade. So types of trade, you are aware of import trade, you are aware of export trade. This interport trade may be a new, थोड़ा सा नया लगता होगा आपको, but it's very simple. So these are the three types of trade: import, export and interport trade. Now what is the role of foreign trade? क्यों करना चाहिए अपने को foreign trade? क्या ज़रूरत है foreign trade का अपने country को? Is there any need? Does it play any role? Foreign trade does play any role? Yes, foreign trade plays a very important role in the development of the nation. In developed countries, it represents a significant share of gross domestic product. In developed countries, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा लेता है. It plays a very important role in gross domestic product. So role of foreign trade can be classified as to earn foreign exchange. To earn foreign exchange मतलब जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज, जितनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी अपने पास आएगी उतना अपन ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे. फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज. जब अपन किसी कंपनी के साथ किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तब अपने को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, अपने को उनकी करेंसी वगैरह मिलती है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. फॉरेन ट्रेड इज़ अ रिमार्केबल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अपने प्रोडक्शन के लिए बूस्ट करती है.
इससे क्या होता है, अपना प्रोडक्शन भी बढ़ता है ना, अपना देश का प्रोडक्शन बढ़ता है, वी कैन गेट फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो, एंड अपना इकोनॉमी भी अपने आप से बढ़ेगा। तो एनकरेज इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड क्या देता है, प्रोड्यूसर को एक नया अपॉर्चुनिटी देता है, एक नया मार्केट देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लाइक इंडिया में उसका मार्केट पूरा सेटअप हो गया है, सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, यू हैव कंप्लीट सेटअप और मार्केट इन इंडिया, बट फॉरेन ट्रेड इज़ अ वेरी बिग मार्केट। इफ़ यू कम टू नो कि बाबा ये कंट्री में मेरा प्रोडक्ट जा सकता है, it can be more useful in this country, what you will do, you will start looking towards it as an investment, you will encourage more investment over there, and this will lead to increase in the total investment of an economy. Now next is the division of labor and specialization. Foreign trade leads to the division of labor and it specializes at a world level. What do you mean by world level? अभी डिवीजन ऑफ लेबर यानी क्या होगा, लेबर्स को अपन अभी पता है ना, इफ यू गो टू आउटसाइड इंडिया ना, यू विल सी मैनी इंडियंस आर वर्किंग ओवर देयर, जस्ट गो टू सिंगापुर, इनफैक्ट आप टोल प्लाजा में इफ यू वांट टू पुट फ्यूल इन योर कार और बस एनीथिंग, आप वहाँ पे इंडियंस देखोगे, राइट। इट इज कम्प्लीटली डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, वहाँ पे हर चीज़ के लिए एक स्पेशलाइजेशन लगता है। सो दिस इज़ नथिंग बट अ स्पेशलाइजेशन। फिर इंडिया में भी अपन लोगों को इस हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं, लाइक देख बाबा ये मेरा गुड्स फॉरेन में जाता है। अब लुक एट द मैंगो सीजन राइट नाउ, मैंगो सीजन इज गोइंग ऑन। क्या होता है, जो अच्छे बड़े बड़े आम है विच आर वेरी गुड इन क्वालिटी, वो क्या होता है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है, और जो छोटे हैं थोड़े लो क्वालिटी के हैं वो इंडिया में रह जाते हैं। नेक्स्ट इज द optimum allocation and utilization of resources. Due to specialization, resources are channelized for the production of only those goods which would be highest in return. अभी स्पेशलाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया, अभी टी अपन बोलते हैं, इफ आई एम वंस आई विजिटेड केरला, इन देयर विजिटेड अ टी फैक्ट्री, टी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री, जो चाय पाउडर बनाते हैं ना वो फैक्ट्री हम देखें, यू वोंट इमेजिन वो लोग 21 टाइप्स के टी पाउडर बनाते हैं। लाइक वो जब क्रश करते हैं ना, जब वो लीव्स पूरे ड्राई करके व्हेन दे क्रश इट, व्हेन दे जब वो ब्लैक ब्लैक पाउडर अपने को मिलता है ना, वो दे से कि अप टू 17 ग्रेड, लाइक 1 फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अप टू 17 ग्रेड, 16 to 17 ग्रेड वो सारे एक्सपोर्ट करते हैं। और जो अपने इंडिया में रहता है ना, इट्स ऑल द बचा कुचा माल जो रहता है, इट्स ऑल जस्ट थोड़ा सा बचा कुचा माल जो रहता है ना, वो इंडिया में वो लोग बेचते हैं। एंड व्हाट अबाउट द डिप डिप टी, डिप डिप टी इज नथिंग बट जो लास्ट क्वालिटी 21 क्वालिटी, जो बचा हुआ नीचे का पाउडर रहता है ना पूरा क्रश, जिसका कुछ काम में नहीं, वो लोग डिप डिप बोल के अपन यूज करते हैं। सो दैट इज नथिंग बट अ ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो क्या हो रहा है, अपने पास इतने सब टी के ये हैं, अपन क्या कर रहे हैं, जो सबसे अच्छा क्वालिटी है वी आर सेलिंग इट आउटसाइड द इंडिया, बिकॉज आउटसाइड इंडिया बेचने के लिए वी नीड टू हैव सम स्टैंडर्ड ऑफ दैट प्रोडक्ट। हर चीज़ का इंटरनेशनल मार्केट में एक स्टैंडर्ड है। इफ़ योर प्रोडक्ट इज एज पर द स्टैंडर्ड देन ओनली दोज कंट्री विल एक्सेप्ट योर गुड्स। अगर वो स्टैंडर्ड से नीचे है दे विल सेंड इट बैक टू अस। नेक्स्ट इज stability in price level. Foreign trade helps to keep the demand and supply position stable, in which stabilize the market level in the country. Foreign trade से क्या होता है, there is stabilization in the market. अपना demand and supply in the foreign market क्या होता है, balanced रहता है, like import and export balance रहता है। Just imagine अगर अपन सिर्फ import करते रहेंगे तो क्या होगा, if we only import the goods तो क्या होगा, अपने पास फॉरेन करेंसी कुछ आएगी क्या, नो, वी वोंट हैव एनी ऑफ द फॉरेन करेंसी। इससे क्या होगा, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा लो हो जाएगा। विल आवर कंट्री विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर बैलेंस रहेगा तभी देयर विल बी स्टेबिलिटी इन द प्राइस। नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द मल्टीपल चॉइस। इसमें क्या होगा, फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स मल्टीपल चॉइस ऑफ इम्पोर्ट कमोडिटी।
एज फॉरेन ट्रेड इज, अभी फॉरेन, पहले तो क्या है इंटरनल ट्रेड ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था, अब क्या हो गया है, अब फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। सी इफ़ यू, अगर आप पहले से फॉरेन ट्रेड में हो एंड इफ हैव एस्टेब्लिश्ड योर मार्केट ओवर देयर, तो you can survive it very well. But if you are just new in the market and if you are going to survive and you are investing in foreign market, then it would be a difficult task to manage over there, क्योंकि आपको पता नहीं लोग आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, कितना करेंगे, क्या करेंगे। सी नाउ इफ यू गो टू यूके यूएस, व्हाट इज देयर ओवर देयर, आपको सब कुछ मिलेगा, देयर इज अ प्रॉपर इंडियन मार्केट ओवर देयर, उस प्रॉपर इंडियन मार्केट में आपको सब कुछ मिलेंगे, यू विल गेट ऑल द स्पाइसेस, यू विल गेट ऑल द मसालास, यू विल गेट ऑल द इंडियन स्वीट्स एंड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बिजनेस किया ना, दे ट्राई टू, अब इंडिया से वो लोग माल मंगाते हैं, दे कीप एंड दे सेल इट इन द फॉरेन मार्केट। जैसे अपने यहाँ पे वो मसाले के पैकेट्स वगैरह आते हैं, इट माइट बी अ 40-50 रुपीज़, बट व्हेन दे गो देयर दे कन्वर्टेड इन, दे गेट कन्वर्टेड इनटू डॉलर, और डॉलर का रेट ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे उनको वो फ़ायदामंद होता है, तो दे गेट मोर प्रॉफिट ओवर देयर सेलिंग दोज मसालाज एंड ऑल over there. That we have seen that MDH masalas and all, you can get there easily. So वहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती है। वहाँ पे ये प्रोडक्ट कौन खरीदता है? यूजुअली इंडियन लोग खरीदते हैं, और होटल्स में भी जो इंडियन शेफ्स रहते हैं, इवन दे बाय दोज गुड्स। बट डू यू थिंक फॉरेन शेफ ये जल्दी मसाले बाय करेंगे? नहीं, बिकॉज दे फील दे आर मोर स्पाइसेस, दे आर मोर स्पाइसी, बट इंडियन लोग दे विल प्रेफर इट मोर ओवर देयर। तो वहाँ पे हर कंट्री में टिपिकल इंडियन मार्केट मिलेगा आपको, टिपिकल इंडियन मार्केट, वहाँ पे आपको लोग सारे इंडियन दिखेंगे, सब कुछ आपको इंडिया जैसा लगेगा। दैट इज नथिंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ द मल्टीपल चॉइस। नेक्स्ट इज ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल। अभी अपन एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो अपनी कंट्री का एक रेपुटेशन बढ़ता है ना। Exporting countries can earn reputation and goodwill in the international market. For example, like आज जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इनका क्या है, they are the reputed country in the foreign market. They have earned a goodwill, reputation, उनके goods, उनके ये, they have earned very good name. What about China? What do you think about the China on this? चाइना का भी बहुत नाम है एक्सपोर्ट के लिए, बट क्या है, चाइना प्रोडक्ट है, सस्ते में मिलता है और ज़्यादा टिकता भी नहीं है, राइट? यू नो दैट अपने यहाँ पे टॉयज़, बहुत से प्रोडक्ट चाइना के आते हैं, राइट? बट क्या है, स्पेशली टेक द एग्जांपल ऑफ टॉयज़, वो छोटी गाड़ियाँ जो अपने को 25-30 रुपए में मिलती है यहाँ पे, कितना चलता है वो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन खराब। वही आप हाई क्वालिटी का लो, यू टेक इट ऑफ 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़, हाउ मच इट डज इट गो? इट विल लास्ट फॉर एटलीस्ट मंथ। सो चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बट नाम क्या है चाइना का? सस्ता प्रोडक्ट है बोल के। इसकी चाइना के गुड्स की कोई गारंटी नहीं देता, बट वही आप दूसरे कंट्री से खरीदो, दे विल आस्क यू टू पे मोर, बट दे विल गिव यू द गारंटी ऑफ इट, वारंटी विल गेट इन फैक्ट। गारंटी आजकल कोई नहीं देता, दे विल गिव यू वारंटी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी। गारंटी इज लाइक आपको पक्का मिलेगा, कभी भी कुछ भी हो आपको पूरा नया प्रोडक्ट मिलेगा। वारंटी इज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। So there is a great difference between guarantee and warranty. Just Google it and check it. Next is the composition and direction of foreign trade. What is mean by composition and direction? 70 से ईयर के बाद क्या हो गया, इंडियन फॉरेन ट्रेड, अपना इंडियन फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद अपन ने थोड़ा थोड़ा मार्केट इन किया। आज सिनेरियो क्या है फॉरेन ट्रेड का? इट हैज चेंज ड्रास्टिकली। इंडियन फॉरेन ट्रेड हैड चेंज ड्रास्टिकली। आज इंडिया ने बहुत नाम कमाया है फॉरेन ट्रेड में भी। फर्स्ट डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड का फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। सिंस इंडिया पहले क्या करता था, एक्सपोर्ट, पहले इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था और एक्सपोर्ट कम करता था। आज क्या सिनेरियो हो गया है, आज इंडिया इज ट्राइंग टू रिड्यूस द इंपोर्ट, जो भी है इट्स ट्राइंग टू प्रोड्यूस इन द कंट्री इटसेल्फ सो दैट इट्स इकोनॉमिक कैन हैव अ गुड डेवलपमेंट। 1991 में क्या था, इंडियाज ग्रॉस इनकम वॉज थ्रू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड वॉज 17.55%।
आज इट हैज़ 2007 में क्या हो गया, इट इंक्रीज टू 25%, दैट इज 48.8% अपना फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो गया है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड मतलब क्या है? हाँ, 90 में क्या था, इंडिया का वॉल्यूम है अपना ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ा। 90s में क्या हो गया, इट टुक अ ग्रेट बूम एंड टुडे क्या है अपन, वी हैव अ ग्रेट वॉल्यूम एंड वैल्यू इन द मार्केट। आज इंडिया का एक रेपुटेशन है, एक वैल्यू है मार्केट में, फॉरेन ट्रेड मार्केट में। ऐसा नहीं कि बाबा इंडिया से गुड़ आया है तो इंडिया से एक कंटेनर आया है, गुड्स आया है तो ये सस्ता होगा। इट इज़ नथिंग सो, इंडिया से आया है अच्छा ही होगा, इट इज़ ऑफ दैट व्यू। सो इंडिया का आज वॉल्यूम, ट्रेड का वॉल्यूम भी बढ़ा, ट्रेड भी बढ़ा, एक नेशन का नाम भी हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट क्या हुआ है, अपना एक्सपोर्ट ट्रेड ट्रेमेंडसली चेंज हुआ है। लाइक इंडिपेंडेंस देखो, 90s में देखो और आज 20s में देखो अपना इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट में वगैरह। आज अपन बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस अपन हार्डली कुछ एक्सपोर्ट करते थे। लाइक वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट ओनली रॉ मटेरियल, क्रॉप्स वगैरह थोड़ा ये करते थे। उसके बाद अपन ने धीरे धीरे क्या एक्सपोर्ट करना चालू किया, जूट, टी, हाँ कॉफ़ी, स्पाइसेस, अपन ने धीरे धीरे ये एक्सपोर्ट करना चालू किया। आज अपन क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट, आज अपन बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक फूड ग्रेन, ऑयल सीड्स, लेदर, मिनरल ऑयल, नट्स। आज अपन ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, जेम्स, इन सब का भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं आज अपन इंडिया। ये सारी चीज़ें अपन आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑक्यूपाइज अ प्राइम प्लेस इन इंडियन एक्सपोर्ट। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर पार्ट्स रहते हैं, कंप्यूटर्स हैं, इसमें भी इंडिया ने एक्सपोर्ट में बहुत नाम कमाया है। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या सिनेरियो था, अपन खाली इंपोर्ट करते थे फॉरेन गुड्स। इनफैक्ट इंग्लैंड से अपने को बहुत सी चीज़ें आती थी, दैट इज वॉज द इम्पोर्ट होना। और फिनिश्ड गुड्स आता था और बहुत सस्ते में आता था, इम्पोर्ट होता था, राइट। बट अभी क्या हो गया है, अभी इंडिया यूज टू इम्पोर्ट कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लोथ, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये सब अपन क्या करते थे, बाहर के कंट्री से लेते थे। अभी क्या हो गया है, अभी चेंज सिनेरियो ये हो गया है। अभी क्या हो गया, अभी भी इंडिया इंपोर्ट करती है, अभी इंपोर्ट भी इतना ही ज़्यादा हो गया है जितना एक्सपोर्ट हो चुका होता है। लाइक एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी इंडिया इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रही है। इसलिए इंडिया को क्या है, पोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। पोर्ट यानी अभी मोस्टली ट्रेड ओशनिक होता है, ओशन से लेते हैं, ओशन से आता है, तो इट स्टार्टेड डेवलपिंग सर्टन पोर्ट्स। पहले तो सिर्फ मुंबई एक ही था, नाउ इट हैज़ स्टार्टेड इन कोचिन, विशाखापट्टनम, कांडला, नेवल सेवा एक्सेट्रा टू रिड्यूस द पोर्ट ऑफ द एक्सिस्टिंग, ये सारा करने के लिए। नाउ ओशनिक ट्रेड, अभी मोस्ट ऑफ द ट्रेड इज कैरिड बाय सी। इंडिया हैज़ अ वेरी गुड ट्रेड रिलेशन विथ इट्स नेबरिंग कंट्री। व्हाट आर आवर नेबरिंग कंट्री? बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, दिस आर ऑल आवर नेबरिंग कंट्रीज। अपना नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है विथ रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड एंड ऑल। एंड इंडिया tries to export as much as to this foreign this small countries so that it can earn more from its neighbor country only, ताकि नेबर कंट्री को भी फ़ायदा हो और अपनी कंट्री को भी फ़ायदा हो। तो इंडिया क्या करती है, ओशनिक ट्रेड होता है और मोस्टली अपने नेबर्स के साथ भी वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट। पहले क्या था, मुंबई, कलकत्ता, ओनली दिस पोर्ट्स वेर देयर, ओनली हार्डली चेन्नई, यही पोर्ट रहने के। बट क्या हो गया, जितना अपना एक्सपोर्ट बढ़ रहा था उतना अपना इंपोर्ट भी बढ़ रहा था, तो उसके लिए अपने को नए पोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगी, राइट। क्योंकि इन 3 पोर्ट्स पे दे यूज्ड टू गेट सो कंजेस्टेड एंड इट वाज ओवरबर्डन। ये जो लिमिटेड पोर्ट्स थे वो क्या हो गए, ओवरबर्डन हो गए। सो इट वाज टाइम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया। सो India started developing the new ports.
Today we can see new ports in, as I have told you earlier, it was in Cochin, Vishakhapatnam, Kandal Seva, Naval Seva. These are the Kandla. These are the new ports which came in the which came for the डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब ये आने से क्या हो गया, जब नए नए पोर्ट डेवलप हो गए तो क्या हो गया, थोड़ा सा जो पुराने पोर्ट थे उन पे बर्डन कम हो गया एंड देयर वाज अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेड विथ रिलेटेड टू इम्पोर्ट. So this was the composition and direction of Indian foreign trade. Now इसके आगे का जो भी है we will study in the next lecture. Thank you.